So class 9 we'll be starting with the demerits of sole proprietorship. In the last class we did about sole proprietorship, what is the definition and the features of sole proprietorship as well as the merit. So today we are going to start with the demerits of sole proprietorship. So demerits क्या है? पहला limited capital resources. First is your limited capital resources. So this is the first demerit. Now why this is a demerit? Because a sole proprietorship is a single person who is looking after the whole business. He's arranging for all the finance for the whole business. So he's a single person. So the resources that he is going to arrange or he can arrange or he is having is limited because he's a single person. So एक सिंगल आदमी बिजनेस कर रहा है, पैसा अरेंज कर रहा है, तो उसके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द demerit of a sole proprietorship. So what does it say? It says that the financial resources of a sole proprietorship are limited. So the financial मतलब पैसा, financial resources are what? Are limited. So this is one of the demerit of a sole proprietorship. क्योंकि एक सिंगल आदमी कितना पैसा अरेंज कर सकता है, उसके पास कितना पैसा हो सकता है? बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता, लिमिटेड ही होगा. नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज. लिमिटेड managerial abilities. ठीक है. So this is the another feature, right? Under this, what is happening? Under this, your a single person is looking after everything. तो उसके जितने भी मैनेजरियल स्किल्स है, मतलब मैनेजर होने वाले जो स्किल्स होते हैं, जो चीज को मैनेज करते हैं, तो मैनेजरियल स्किल्स बोलते हैं कि आपको एक मैनेजर बनने की क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं है, तो वो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं या मैनेजरियल एबिलिटीज होती है. तो एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके पास अगर पैसा है तो उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी भी हो. तो अगर वो किसी और को अपने साथ काम कराए या हायर कराए या पार्टनरशिप में रखे, तो हो सकता है कि 2-3 अगर लोग उसके साथ और हो तो शायद उनके पास बेटर मैनेजरियल स्किल्स हो. लेकिन एक सिंगल आदमी के पास सारे के सारे मैनेजर्स की टैलेंट्स या स्किल्स हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो ये भी व्हाट दिस इज आल्सो वन ऑफ द व्हाट दिस आल्सो वन ऑफ द demerit of sole proprietorship, that one person cannot be expert in each and every field. So one person cannot be expert in each and every field. As a manager वो सारे काम कर लेगा, ये possible नहीं है. All the qualities required for success in the business are rarely found in single individual. So whatever qualities are required in a business, so it is not necessary or it is not possible that a single person acquire those all qualities or skills. So this is also one of the demerit. Okay, so he may commit errors. Sometimes it may happen that he may commit errors, or that there is wrong judgments, or there is wrong decisions, or there is some unbalance, some type of unbalances there, because he is a single person. He cannot even take advice or consult someone else, because he is a single person. How he should consult anybody when there is no one to consult? So because he's looking after the business himself, he's arranging for the money, he's controlling it, and moreover he is working as a manager also. So it is possible that some of the managerial skills must be missing, or he may not acquire all the managerial skills which are required to run a business. Next is unlimited liabilities. Unlimited liabilities. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर. अंडर दिस व्हाट इज हैपनिंग कि एक सिंगल आदमी को क्या करना पड़ रहा है? सारे के सारे लाइबिलिटीज को ध्यान देना पड़ रहा है. मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसकी अपनी बन गई है. मतलब अगर लॉस हो रहा है तो उसको लॉस भी देखना है, अगर उसने किसी से लोन लिया है तो उसको लोन को भी देखना पड़ेगा, अगर उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो प्रॉब्लम्स भी वो दिखेगा, अगर वो किसी का पैसा नहीं लौटा पा रहा है, डेप्ट है, उधार है, तो उधार भी उसको देखना पड़ेगा. तो सारी की सारी चीजें उसके ऊपर आ गई है. तो ये बहुत ही खराब बात है इसकी. द प्रोप्राइटरशिप पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लॉसेस ऑफ बिजनेस, ऑल द डेप्ट ऑफ बिजनेस. अगर उसने किसी से उधार लिया है और लौटा नहीं पा रहा है, तो यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी बेच करके वो उसको उधार लौटाना पड़े. लेकिन अगर उसके पास कोई पार्टनर होता, ठीक है, अगर सिंगल आदमी सिंगल काम नहीं कर रहा होता, उसके पास कोई पार्टनर होता, तो उस केस में क्या होता? उस केस में उसके साथ एटलीस्ट उसके लॉसेस शेयर करने वाला कोई होता, प्रॉब्लम शेयर करने वाला कोई होता, यहाँ तक कि अगर उसके डेब्ट्स उधार वगैरह कुछ होते तो उनको शेयर करने वाला कोई होता. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये एक बुरी बात है. ठीक है. नेक्स्ट इज अनसर्टेन लाइफ. अनसर्टेन लाइफ. ठीक, किसी भी इंसान की लाइफ क्या है? अनसर्टेन
नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय द कंटिन्यूटी, इट इज डिपेंड ऑन लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर ही अगर उसकी डेथ हो जाए तो बिजनेस खुद ही क्या जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपकी जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उसकी लाइफ का कुछ पता नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की लाइफ के ऊपर आपका बिजनेस की लाइफ डिपेंड करती है। अगर सोल प्रोप्राइटर मर जाए या डेथ हो जाए उसकी, तो उसका बिजनेस भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि कोई और पार्टनर तो है नहीं कि उसके बाद बिजनेस को संभाल ले, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। तो इस केस में क्या है, आपके बिजनेस में कम टू स्टैंड स्टिल ड्यू टू इलनेस, इंसॉल्वेंसी और डेथ। यहाँ पे अगर उसको इलनेस हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, इसका बिजनेस स्टैंड स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ तक कि बंद भी हो सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सो अब क्या है कि जहां तक कि हम बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि भाई एवरी पर्सन वांट्स कि भाई ये उसका बिजनेस बड़ा हो, फैले बिजनेस, तो इस केस में क्या है, उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड कैपिटल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसके जो एक्सपेंशन के चांसेस है बिजनेस के, वो बहुत क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंस एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज देयर इज लिटिल स्कोप फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, so if he wants to increase his business, he wants to extend his business, so in that case he cannot do it because he is a single person to look after all the business activities. Moreover, the capital is limited, the managerial skill is limited, so the scope for the business expansion is very very what, little. So these were what the features, sorry, the demerits. The first one was limited capital. Sole proprietorship has limited capital to invest in business. Next, limited managerial ability. All the sole proprietors do not have all the managerial skills. So at times there are certain managerial skills which are absent in them. Unlimited liabilities. As far as the liabilities are concerned, debt are concerned, he is unlimited liable for them. Even if he has to pay somebody's debt, then he has to sell off his own property to pay off the debts. Next, uncertain life. Uncertain life means in case of illness, insolvency or death, the business can come to a standstill. Limited scope for expansion, इसका मतलब है due to limited financial and managerial resources, there is a little scope for the expansion of business. Right? So these were the demerits. Now we'll read about the suitability of sole proprietorship. Suitability of sole proprietor. Now sole proprietor suitability का मतलब ये कि कहाँ पे sole proprietorship business है जो फिट हो जाता है, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह ऐसी जहाँ पे किसी व्यक्ति को sole proprietorship business कर लेना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कहती है कि हाँ sole proprietorship business बिल्कुल सही होगा करना। पहली चीज है आपका where the market is local, example small scale retailer। ठीक है, पहली जगह आपकी sole proprietorship वहाँ खुल सकती है जहाँ पे where the market is local, where the market is लोकल। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस करना है अपने लोकल एरिया में, सपोज जैसे आप लोग देहरादून में रहते हैं, यू प्लान फॉर अ बिजनेस in the future, so what you can do, you can go for a small business in your local area, like you can start with a shop, you can start with a gift store, then you can start with a departmental store, then you can start with a beauty parlor, right? These you can start with a salon or restaurant, so these all are what small businesses. So अगर लोकल एरिया की बात करें तो लोकल एरिया में छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी जगह है कहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा रहता है, वेयर पर्सनल अटेंशन इज रिक्वायर्ड, वेयर पर्सनल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। सो जितने भी ऐसे बिजनेस है जहाँ पे पर्सनल अटेंशन चाहिए वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल सही रहता है। वैसे तो हर बिजनेस में पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स हो गया, टेलरिंग हो गया। टेलरिंग में आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है। सैलून हो गया तो आपको हेयर कट में ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हो, बहुत अच्छी सर्विस देना चाहते हो, इन दैट केस सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट काइंड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, वेयर फैशन चेंजेस frequently,
ऐसी जगह जहाँ पे फैशन बहुत फ्रिक्वेंटली बदलता है, इस तरह के बिजनेस जहाँ पे फैशन बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक ज्वेलरीज वगैरह में हो गया या मोबाइल फोन्स में हो गया। यहाँ पे आप देखते हो कि बड़ी जल्दी जल्दी मोबाइल फोन्स के नए नए फीचर्स आते हैं, नए नए मोबाइल फोन्स आते हैं। तो हर बार आपको क्या करना पड़ता है, एज अ मोबाइल फोन डीलर यू हैव टू डील विद द कस्टमर एंड टेल देम द लेटेस्ट फीचर्स, द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फोन्स, द अदर फीचर्स ऑल्सो। सो इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके फोन्स में फटाफट चेंजेस आ रहे हैं, या कोई ज्वेलरी की शॉप है तो ज्वेलरी की शॉप में फटाफट चेंजेस आते रहते हैं। तो इस तरह केस में क्या है, आपको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है, और जब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे आप, तो इस तरह आपको छोटा मोटा बिजनेस में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस के लिए आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही अच्छी जगह है। नेक्स्ट, वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। फोर्थ, वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड। वो सारे बिजनेस जहाँ पे थोड़ा सा ही कैपिटल लगाने से बिजनेस आपका चालू हो जाता है, जैसे कि छोटा मोटा कोई स्टोर हो, या कोई टेलरिंग की शॉप हो, या कोई ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, स्पा हो। इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, बिजनेस स्टार्टिंग अमाउंट बहुत छोटा होता है। तो इस तरह के बिजनेस में एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, बहुत अच्छा बैठता है। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आप उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बड़े बड़े बिजनेस के लिए होता ही नहीं है। बड़े बिजनेस में आपको क्या चाहिए, ज्वाइंट बनना, किसी के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, पार्टनरशिप करनी पड़ती है। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस जहाँ पे पैसा, जो कैपिटल है, स्टार्टिंग पैसा है जो बहुत कम लगता है, उस तरह के बिजनेस के सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट वन। ठीक है, क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस। सो क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। सो ऐसी सारी जगह जहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्विक डिसीजंस चाहिए, प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट मतलब फास्ट एक्शंस चाहिए। उन सब में आप क्या कर सकते हो, प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई छोटी बिजनेस आपका ऐसा जहाँ पे फटाफट से आपको डिसीजन लेने हैं, फटाफट से कोई चेंजेस लाने हैं, फटाफट से कोई एडजस्टमेंट्स करने हैं, इन दैट केस यू आर अ सिंगल पर्सन, you are the single person who is looking after everything. You are the manager also, you are the controller also, you are the financer also, you are the owner also. So in this case you are not supposed to consult anybody, so you can take the decision, the correct decision whatever are required. So इस तरह के बिजनेस के सोल प्रोप्राइटर बिजनेस वहाँ पे कुछ सटीक बैठता है, where your prompt decisions are required, right? The sixth is where risk involved is negligible. Where risk is small. तो सारी ऐसी जगह जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो, अगर आपने पैसा लगा भी दिया और बाई चांस अगर बिजनेस नहीं चला तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो, आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, या आपको नुकसान जो हो रहा है आपसे बर्दाश्त कर सके। तो इस तरह का बिजनेस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वहाँ पे किया जा सकता है। तो ऑल टुगेदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में क्या क्या पढ़ा आज। हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक इस तरह का बिजनेस है जिसे सिंगल पर्सन कंट्रोल करता है। ठीक है, सिंगल पर्सन इसे क्या करता है, सिंगल पर्सन कंट्रोल्स फाइनेंस, मैनेजेस द बिजनेस। ठीक है, ही टेक्स प्रॉम्प्ट मतलब बहुत फटाफट, he takes prompt decisions and is unlimited liable. ठीक है, unlimitedly he is what liable for his all the decision, for his all the losses। जो भी चीज़ें वो गलत करेगा या सही करेगा उसके लिए खुद ही लाइबल होगा, खुद ही क्या होगा, जिम्मेदार होगा। जब हम लाइबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लाइबल शब्द जब हम बोल रहे हैं तो लाइबल शब्द से मतलब क्या है कि वो खुद ही जिम्मेदार होगा, चाहे अब वो प्रॉफिट हो चाहे वो क्या हो, लॉस हो। तो विल बी लाइबल फॉर हिज ओन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, अगर उस पर किसी को उधार भी चढ़ जाता है तो उसको उधार लौटाने के लिए व्हाट ही हैव टू डू, ही हैव टू पे समहाउ, इधर वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेच के क्यों ना किसी का उधार लौटाए। तो ये कहते हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के आपकी सूटेबिलिटी थी। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज सेवरल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
ठीक है, द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग. इफ द मैन इज हैविंग ऑल टाइप ऑफ स्किल्स, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी वेरी कन्विंसिंग दैट ही कैन कंट्रोल द बिजनेस. इस तरह के बिजनेस के ये फायदे होते हैं कि इस तरह के बिजनेस में आप क्या है, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो रहे हो, आप अपना बिजनेस खुद ही कर रहे हो, खुद ही रन कर रहे हो, अपने आप को खुद काम दे रहे हो और साथ में लोगों को, बाकी लोगों को भी काम या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हो और सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि देश के लिए और सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लोगों के लिए भी पैसा अवेलेबल करवा रहे हो क्योंकि आप उनको जॉब दे रहे हो. वंस द पीपल गेट जॉब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तो क्या होती है, गरीबी भी क्या होती है, इरेडिकेट होती है, गरीबी भी हटती है. तो एक सोल प्रोप्राइटर का जो रोल है सोसाइटी में, एक सोल प्रोप्राइटर का रोल है, वो क्या क्या रोल्स है एक सोल प्रोप्राइटर के. रोल ऑफ सोल प्रोप्राइटर के रोल क्या क्या है, ठीक है. ही इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, लोग क्या 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 लोगों को क्या दे रहा है, जॉब दे रहा है, ठीक है. ही इज क्रिएटिंग इनकम, क्रिएटिंग इनकम फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन. वो देश के लिए और सोसाइटी के लिए इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है. वो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, लोगों के पास गुड्स है, लोगों के पास सर्विसेज है, ठीक है. तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आती है, इन लोगों से आती है जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है लोगों को, ठीक है. सो रिस्पॉन्सिबल है वो फॉर ऑल लॉसेस एंड प्रॉफिट, वो सारे प्रॉफिट के लिए और लॉसेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. जो भी उसका उधार है, जो भी चीजें है, वो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है. हाँ, क्रिएट्स an example for the people. वो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है कि यार इफ आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस और आई कैन रन अ बिजनेस एंड हैव ऑल द मैनेजर स्किल्स, बट व्हाई डोंट यू. तो दूसरे लोग भी क्या होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. द पीपल गेट इंस्पायर्ड, दे गेट इंस्पायर्ड एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू वॉट रन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस. तो एक सोल प्रोप्राइटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है आपका, किसमें, आपका एक सोसाइटी में, ठीक है. आफ्टर दिस जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली business. Next topic will be meaning and features of Hindu undivided business. So Hindu undivided business is going to be the another topic. तो बेसिकली थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेंगे. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होती है, जब हिंदू फैमिलीज क्या करती है, अपना पूरा जॉइंट फैमिली एक बिजनेस कर रही होती है और उसमें सबसे हेड व्यक्ति जो होता है वो करता होता है, या वो पूरे पूरे हेड होता है पूरी फैमिली का और वो लुक आफ्टर करता है सारे के सारे बिजनेस का. तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं. वो ठीक है, पूरे के पूरे मेंबर्स जो फैमिली के होते हैं उसे लुक आफ्टर करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. इसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं, या इसको हम हिंदू बिजनेस भी, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस भी कहते हैं. इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशंस. इसे हिंदू सक्सेशंस गवर्न करते हैं. मतलब ये कि आपका जो एयर होगा, आपके बाद जो आपका बेटा होगा, वो आपका हेड बन जाएगा फैमिली बिजनेस का. फिर उसके बाद जो उसका बेटा होगा वो फैमिली का हेड बन जाता है. तो इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको आप क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं. दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ सक्सेशन. ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो शेयर है, द शेयर ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की, वो क्या होती है, मेल मेंबर्स को ट्रांसफर होती जाती है. दादा के बाद उसके बेटे को, उसके बेटे के बाद उसके बेटे को. ठीक है, तो यहाँ पे मेल फैमिली, मेल मेंबर्स का ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं. फीमेल वाले मेंबर्स का इतना डोमिनेटिंग रोल इस तरह के बिजनेस में नहीं होता है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी हैव डन अप टू सोल प्रोप्राइटरशिप.
अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। एंड आई टोल्ड यू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है। आपका जो बिजनेस सदियों से आपकी फैमिली में चलता आ रहा है और आगे भी कैरी ऑन होगा, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है। और इसको जो घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है वो इस तरह के बिजनेस का क्या होता है, हेड होता है। तो इसके फीचर्स क्या है और व्हाट आर गोइंग टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन our next video. Till then you people will be keep completing your notes and keep submitting it to me. So we'll be in the next video we'll be discussing about the merits, demerits, features of Hindu undivided family business. Till then students, take care of yourself, keep completing your notes and stay at home and stay healthy.